Hello students, in this lecture we will see more numericals on Z parameters. So this is the numerical. Find the Z parameters for the network shown. और अगर ये न्यूमेरिकल देख रहे हैं तो इसमें इंडक्टर भी दिया है. So when such type of circuit is there where there is an inductor as well as capacitor, you have to transform the network. So here I will write the transformed circuit is, and how to do the transformation. So resistor will be represented as it is. So 1 ohm, so I will write just 1 over here. This 1 ohm will be represented as 1. For inductor, let's say if the value is L, then it will be transformed as S into L. S is nothing but J omega. So you are representing the impedance of the inductor as J omega L simply as SL. But the value of L over here is 1 Henry. So the transformed inductor impedance will become just S. Similarly over here, instead of 1 we have to write down S. If let's say they have mentioned some capacitor, then capacitor has to be written as 1 by SC, because S is nothing but 1 by J omega C, which is nothing but capacitive reactance. ये BEE में हम लोग ने पढ़ा है. Okay, so I have transformed the circuit. Next thing, if you observe this network, there are 3 meshes. First mesh over here, second and third mesh. बट Z पैरामीटर के इक्वेशंस कैसे दिए जाते हैं? सो यू विल हैव V1 एंड V2 इन टर्म्स ऑफ जस्ट I1 एंड I2. इधर I1 I2 I3 नहीं होता है क्योंकि ये 2 पोर्ट नेटवर्क है. सो खाली I1 और I2 ही होगा. और हियर यू विल हैव Z11 Z12 Z21 एंड Z22. सो नाउ हाउ टू सॉल्व दिस थिंग. तो सेंट्रल मेश में हम लोग करंट अज्यूम करेंगे I3. फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट डाउन I3 इन टर्म्स ऑफ I1 एंड I2. I1 और I2 किधर है? सो ये है मेरा I1 जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहा है, बिकॉज दे आर सेइंग I1 इज ओवर हियर. एंड I2 कैसे अज्यूम करने का है? सो I2 इज मूविंग इनटू दिस सेकंड पोर्ट, I2 टुवर्ड्स लेफ्ट. सो I2 इज ओवर हियर. सो दैट मीन्स I2 इज मूविंग इन दिस मैनर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको I3 का इक्वेशन बनाने का है I1 और I2 के टर्म्स में, और फिर आप KVL मेश 1 और मेश 2 में अप्लाई करोगे. ये मेश 3 है, ये मेश 1 है, ये मेश 2 है, and you will calculate these two equations. So first of all, KVL in mesh 3. Before applying KVL in mesh 3, you have to assign the sign for the voltages across the impedances. So you are moving or traveling this loop in a clockwise manner. So these signs have been assigned. So minus 1 time I3, I am starting at this point, minus S time I3 plus I2 हो जाएगा ये, minus S time I3 minus I1. एंड यू हैव कंप्लीटेड द लूप, सो दैट इज इक्वल टू 0. सो अभी इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा? सो -1 -2s I3, ये I3 के साथ ये कॉमन आ जाएगा, एंड हियर यू विल हैव -s I2 एंड यू विल हैव +s I1. सो I3 का इक्वेशन क्या बनेगा? तो ये इज इक्वल टू 0. सो I3 का इक्वेशन बनेगा, आई एम ट्रांसफरिंग दिस टर्म ऑन RHS. सो s by 2s plus 1 I1 minus s by 2s plus 1 I2. So I will call this as equation number 1. इसके आगे जिधर भी आपको I3 का सब्स्टिट्यूशन करने का है, सो आपको ये सब्स्टिट्यूट करके उसको एलिमिनेट करने का है. Now we will apply KVL in mesh 1. So KVL in mesh 1, writing over here. Starting at this point, so plus V1, you have to travel this mesh in a clockwise manner. So plus V1, go ahead, plus minus, so minus 1 time I1, okay, go ahead, माइनस एस टाइम I1 माइनस I3. ये एस बराबर से लिखने का, नहीं तो क्या हो जाता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स देयर राइट एस इन सच अ मैनर दैट इट अपीयर्स एज अ 5, तो वो पूरा न्यूमेरिकल रॉन्ग हो जाता है. एंड यू हैव कंप्लीटेड दिस लूप. सो यू विल हैव इक्वेशन ऑफ V1 एज s plus 1 I1 एंड हियर यू विल हैव माइनस एस टाइम I3. सो I3 एलिमिनेट करने का, सो आई विल सब्स्टिट्यूट दिस I3 ओवर देयर. सो यू विल हैव V1 s plus 1 I1 माइनस ये हो जाएगा s, और ये ब्रैकेट में आ जाएगा s. सो यू विल हैव s स्क्वायर डिवाइड बाई 2s plus 1 I1, और इधर भी हो जाएगा s स्क्वायर डिवाइड बाई 2s plus 1 I2. अभी ये I1 और I1 ये कंबाइन करने का है. सो ये हो जाएगा V1 इज इक्वल टू s plus 1. अभी एलसीएम लेने का है आपको इधर. सो हियर इट विल बिकम इनटू 2s plus 1 माइनस a स्क्वायर, ये a स्क्वायर इधर आ जाएगा, और इधर डिनोमिनेटर होगा 2s plus 1. ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ I1. ये माइनस और ये माइनस बन जाता है प्लस. सो हियर यू विल हैव प्लस a स्क्वायर बाई 2s plus 1 I2. सो आपने I3 को एलिमिनेट कर दिया है. सो V1 इज इक्वल टू, अभी इसको सॉल्व करेंगे तो ये न्यूमरेटर में हो जाएगा 2s स्क्वायर,
और माइनस ए स्क्वायर कर देंगे तो ये फिर से आ जाएगा एस स्क्वायर, और सेंट्रल टर्म होगा 2s प्लस एस, सो ये हो जाएगा 3s प्लस 1 डिवाइड बाय 2s प्लस 1 i1, और इधर आ जाएगा आपका टर्म प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2s प्लस 1 i2। सो ये इक्वेशन को मैं नाम दे रहा हूँ ए और बी। सो यू कैन कंपेयर दिस पार्ट विथ ए एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ Z11। सो ये जो है कोएफिशिएंट I1 का, ये बन गया मेरा Z11, और ये जो कोएफिशिएंट है स्क्वायर डिवाइड बाय 2s प्लस 1, ये बन गया Z12। सो आई हैव कैलकुलेटेड Z11 एंड Z12। नाउ यू अप्लाई KVL इन मेश 2 एंड यू सब्स्टिट्यूट फॉर I3 एंड फॉर्म दिस इक्वेशन इन दिस मैनर, यू विल गेट Z21 एंड Z22। तो वो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। सो ये नेक्स्ट, इस पे मैंने ट्रांसफॉर्म सर्किट दिखा दिया है। सो आई एम अप्लाइंग KVL इन मेश 2, KVL in mesh 2. So you have to assign the sign for the voltages across the impedances, and only one impedance is there, that is this inductor. So I am starting at this point, plus V2 minus S time, in bracket you have to write down I2 plus I3, both are moving in the same direction. So S time I2 plus I3, and you have completed the loop is equal to 0. So V2 का इक्वेशन हो जाएगा आपका SI2 plus SI3। अभी I3 को सब्स्टिट्यूट करने का है। सो SI2 और I3 का इक्वेशन अपने पास था, ये वाला अपने को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सो हियर यू विल हैव S डिवाइड बाय 2s प्लस 1 I1, और आगे जाके क्या था आपका इधर माइनस S डिवाइड बाय 2s प्लस 1 I2। सो लाइक टर्म्स अपने को कंबाइन करने के, तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर डिवाइड बाई 2s प्लस 1 I1। पहले अपने को I1 का टर्म लिखने का है V2 के लिए इक्वेशन में, और इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा s माइनस एस स्क्वायर डिवाइड बाई 2s प्लस 1 इंटू I2। ये s इधर लिखा गया है, और ये s और ये s मल्टीप्लाई करके इधर s स्क्वायर हो गया। तो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन बाकी है। s स्क्वायर डिवाइड बाई 2s प्लस 1 I1 प्लस ये हो जाएगा 2s स्क्वायर माइनस s स्क्वायर, तो ये हो जाएगा s स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 2s प्लस 1 I2। सो ये अपना V2 का इक्वेशन हो गया। ध्यान में रखिए इधर कि I1 और I2 ये सीक्वेंशियल मैनर में आना चाहिए। नाउ विल कंपेयर विथ इक्वेशन B एंड विल गेट Z21 एंड Z22। तो Z21 कौन है? ये है अपना Z21 और ये है अपना Z22। सो जस्ट मैं मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिख देता हूँ। सो Z मैट्रिक्स मेरा बन गया है। सो आई एम राइटिंग ओवर हियर a स्क्वायर प्लस 3s प्लस 1, करेक्ट। ये देखिए इधर से आ गया था a स्क्वायर प्लस 3s प्लस 1 डिवाइड बाई 2s प्लस 1, डिनोमिनेटर तो वही है सब जगह पे। a स्क्वायर बाई 2s प्लस 1 ये आया था आपका Z12, इधर आ जाएगा आपका a स्क्वायर डिवाइड बाई 2s प्लस 1, और इधर आ गया आपका Z22 a स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 2s प्लस 1। So Z matrix we have found out. The numerical is complete. But now I would like to add one more thing. If you observe these parameters, so Z12 और Z21 ये नेटवर्क का सेम है, you can see here, okay? और सच टाइप को नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं कि ये नेटवर्क है रेसिप्रोकल। हम लोग ने अभी तक रेसिप्रोकल सिमेट्रिकल नेटवर्क नहीं देखा है, बट रेसिप्रोकल ध्यान में रखें, जब Z12 और Z21 सेम हो जाते हैं तो नेटवर्क रेसिप्रोकल हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? फाइंड ओपन सर्किट इंपीडेंस पैरामीटर्स। मीन दे आर सेइंग दैट यू कैलकुलेट Z पैरामीटर। ओपन सर्किट इंपीडेंस पैरामीटर्स इज आल्सो नोन एज Z पैरामीटर। So again there are three meshes, so I will assume I1 over here in mesh 1, I2 over here in the direction they have mentioned over here, I2 is moving over here, and I3 is over here. So first of all ऐसे जब भी न्यूमेरिकल आते हैं जितने तीन मेशेस रहते हैं वो Z पैरामीटर फाइंड आउट करने का है। सो लास्ट लेक्चर में ही हम लोग ने देखा था कि Z पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए आपको KVL अप्लाई करना पड़ता है, और I3 को पहले आप इक्वेशन बना दो, then you can substitute the equation of I3 in other two equations and we can eliminate I3. So मैं पहले I3 को find out कर रहा हूँ। So you are traveling this loop in a clockwise manner, so signs has been assigned for the voltages across the resistances. So KVL in mesh 3. So अपने को start करने का -4 times I3, go ahead, -3 टाइम, ये हो जाएगा I3 लेफ्ट में जा रहा है और I2 भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, सो ये हो जाएगा I3 प्लस I2, और इधर हो जाएगा -1 टाइम I3 इधर लेफ्ट में जा रहा है बट I1 राइट में जा रहा है, सो ये हो जाएगा I3 माइनस I1 एंड वी हैव कंप्लीटेड द लूप, सो दिस इज इक्वल टू 0। सो अभी इसको आप सॉल्व कीजिए। सो ये हो जाएगा -4 -7 -8 I3, ये हो जाएगा -3 टाइम्स I2, और इधर हो जाएगा प्लस I1 1 टाइम I1 इज इक्वल टू 0। सो I3 का इक्वेशन में काफ़ी
जो लिख सकता हूँ 1/8 I1 हो जाएगा और इधर हो जाएगा -3/8 I2। सो इक्वेशन 1 में जो मिल गया है। अभी आपको KVL मेश 1 में लगाने का है एंड यू हैव टू फॉर्म द इक्वेशन इन सच अ मैनर दैट V1 इज ऑन वन साइड एंड I1 एंड I2 ऑन अनदर साइड। KVL इन मेश 1। सो KVL जब आप मेश 1 में लगाओगे, so you have assigned a sign for the voltages across the impedances, so V1, then you will have -1 time. Now you are moving towards right, 1 ohm is shared between 1 and 3, so here you will have I1 minus I3 minus 2 I1 plus I2 and you have completed the loop, so this is equal to 0. So V1 का इक्वेशन मुझे मिल गया, V1 हो जाएगा मेरा 1 plus 2 3 I1 plus 2 I2 minus 1 time I3. I3 को एलिमिनेट करने का, so let us substitute this I3. So V1 is equal to 3 times I1, 2 times I2 and I am substituting this one. So ये -1 और ये ब्रैकेट में चला जाएगा 1/8 I1 minus 3/8 I2. Now like terms you have to combine. So 3 minus 1/8 I1. This will be the coefficient of I1 और I2 का coefficient क्या हो जाएगा 2 plus 3/8. ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो इधर आ जाएगा I2. सो V1 का इक्वेशन मुझे मिल गया, V1 हो गया, ये हो जाएगा 24 minus 1 23/8 I1 एंड हियर आई विल गेट प्लस 19/8 8 to the 16 plus 3 I2. So I have obtained the equation of V1 in terms of I1 and I2. और V1 का Z पैरामीटर्स के लिए इक्वेशन रहता है V1 is equal to Z11 I1 plus Z12 I2. तो ये अपने को Z11 मिल गया है और ये अपने को मिल गया है Z12. अभी इसके आगे हम लोग जाएंगे तो अपने को KVL लगाना पड़ेगा मेश 2 में. सो KVL इन मेश 2. सो आई एम स्टार्टिंग एट दिस पॉइंट प्लस V2, इधर हो जाएगा प्लस माइनस 3 टाइम्स I2 प्लस I3. I2 और I3 दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं थ्रू 3 ओम. इधर हो जाएगा प्लस माइनस 2 टाइम्स, ये हो जाएगा I2 प्लस I1 and then you have completed the loop, so that is equal to 0. So V2 का इक्वेशन क्या मिल गया, अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स I1 प्लस 5 टाइम्स I2 प्लस 3 टाइम्स I3. I3 को एलिमिनेट करने का, सो लेट अस सब्स्टिट्यूट दिस I3 ओवर हियर. सो ये हो जाएगा 2 टाइम्स I1 प्लस 5 टाइम्स I2, इधर 3 ऐसे कैसे रहा, इधर मेरा 1/8 I1 माइनस 3/8 I2. सो लाइक टर्म्स कंबाइन कर दीजिए, मैं इधर जस्ट लिख देता हूँ. सो V2 मिल गया मुझे 2 प्लस 3/8, करेक्ट. ये है कोएफिशिएंट ऑफ I1 और I2 का कोएफिशिएंट क्या है 5 माइनस 9/8, करेक्ट. I2 5 और इधर से 3 3 ज़ा 9. तो इसको सॉल्व करेंगे 8 2 ज़ा 16 प्लस 1 19/8 I1 और इधर आपको मिल गया 40 माइनस 9, सो 31/8 I2. सो V2 का इक्वेशन आपको मिल गया है इन टर्म्स ऑफ I1 एंड I2. सो I1 का जो कोएफिशिएंट रहता है उसको बोलते हैं Z21 और I2 का जो कोएफिशिएंट रहता है इन इक्वेशन ऑफ V2 इट इज नथिंग बट Z22. सो आपको दो इक्वेशन फॉर्म करने को आना चाहिए, बट देन वन कैन इजीली राइट डाउन द Z पैरामीटर्स ओवर हियर. सो आई एम राइटिंग द Z पैरामीटर्स फॉर दिस न्यूमेरिकल ओवर हियर. सो दे गोज लाइक दिस वन. Z इज इक्वल टू, सो पहला मिला आपको 23/8 ओम, इधर से मिल रहा है 19/8, सेकेंड इक्वेशन से फिर से मिला 19/8 एंड 31/8. अगर यही आप न्यूमेरिकल फिर से देख लेते हैं तो Z12 और Z21 आपका सेम आ गया है. सो ऐसे टाइप के नेटवर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, नेटवर्क को बोला जाता है रेसिप्रोकल नेटवर्क. वो शायद प्रॉब्लम ऐसा भी दे सकते हैं कि फाइंड Z पैरामीटर्स एंड चेक वेदर द नेटवर्क इज रेसिप्रोकल और नॉट. सो आपको चेक करने का है कि Z12 और Z21 सेम आ रहे हैं कि नहीं. अगर वो दोनों सेम आ गए तो नेटवर्क रेसिप्रोकल हो जाता है. We'll move towards the last problem on the Z parameters. अभी इसमें क्या दिया है, टेस्ट रिजल्ट फॉर अ 2 नेटवर्क आर एंड दो केसेस दिए हैं. I1 के वैल्यू I1 V1 V2 का वैल्यू दिया है विथ पोर्ट 2 ओपन सर्किटेड, और इसमें पोर्ट 1 ओपन सर्किटेड होते तो क्या क्या पैरामीटर्स है वो उन्होंने दिया हुआ है एंड यू आर सपोज टू फाइंड आउट Z पैरामीटर्स. सो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए पहले अपने को Z पैरामीटर के इक्वेशन लिखने के. सो V1 V2 इन टर्म्स ऑफ I1 एंड I2. सो इधर आपके कोएफिशिएंट्स रहते हैं Z11 Z12 Z21 और Z22. अभी आप ए केस को ले लीजिए. ए केस क्या बोलता है, पोर्ट 2 ओपन सर्किटेड, पोर्ट 2 को आपने ओपन सर्किटेड कर दिया.
पोर्ट 2 ओपन सर्किट कर देते हैं, करंट जीरो हो जाता है और पोर्ट 2 पे करंट रहता है मेरा I2, सो I2 को जीरो कर दिया। अगर I2 को जीरो कर देते हैं तो इक्वेशन 1 में से मुझे क्या मिलेगा, सो ये पार्ट पूरा जीरो हो जाएगा और आई कैन इजीली फाइंड आउट Z11 मिलेगा मुझे V1 बाय I1, क्योंकि I2 तो जीरो हो गया है, सो V1 बाय I1 इज नथिंग बट Z11। क्या V1 का वैल्यू दिया है? हाँ है, दिया है, तो विल सब्स्टिट्यूट ओवर देयर 5.2 एंगल 50 डिग्री। I1 का वैल्यू दिया है, वो केस में दिया है, सो वो 0.1 एंगल 0 डिग्री, सो आपको कितना मिलेगा 52 एंगल 50 डिग्री ओम। वोल्टेज बाय करंट इज नथिंग बट योर इम्पीडेंस। इक्वेशन बी से I2 जब भी जीरो हो जाते तो आपको क्या मिलेगा Z21, और Z21 रहेगा मेरा V2 बाय I1। I forgot to write down this thing that I2 is equal to 0, I2 is equal to 0, ये ऐसा लिखा जाता है। सो V2 का वैल्यू दिया है उन्होंने 4.1 एंगल -25 डिग्री डिवाइड बाय 0.1 एंगल 0 डिग्री। सो आप सॉल्व कीजिए तो इसको मिलेगा 41 एंगल -25 डिग्री ओम, क्योंकि जब ये नंबर पोलर फॉर्मेट में है सो मैग्नीट्यूड का डिवीजन होता है और एंगल का सब्ट्रैक्शन होता है, बट डिनोमिनेटर में एंगल 0 डिग्री है, सो द न्यूमरेटर का एंगल एज इट इज लिखा गया है। अभी बी पार्ट के लिए जाते हैं। बी पार्ट में क्या दिया है उन्होंने कि पोर्ट 1 ओपन सर्किट कर दिया। सो पोर्ट 1 जब ओपन सर्किटेड रहता है दैट मीन्स आपने किया है I1 को जीरो किया है। I1 जब भी जीरो हो जाता है तो इक्वेशन ए से आपको क्या मिल जाता है, इक्वेशन ए से आपको क्या मिलेगा, I1 अगर जीरो हो गया तो Z12 मिल जाएगा। Z12 कैसे मिलेगा, जब ये होगा V1 बाय I2, ओके, व्हेन I1 इज इक्वल टू 0। सो V1 का वैल्यू उन्होंने ये केस में दिया है, सो वो लिख दीजिए 3.1 एंगल -80 डिग्री। I2 का एंगल वो केस का ले लीजिए 0.1 एंगल 0 डिग्री। सॉल्व कीजिए, सो ये मिलेगा 31 एंगल -80 डिग्री ओम। ये आपको Z12 का वैल्यू मिल गया। सो ए पार्ट में से हम लोग ने Z12 निकाल लिया। अभी भी I1 आपका 0 है, सो अगर बी पार्ट में अगर आप I1 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये 0 हो जाएगा और आपको मिलेगा Z22। सो Z22 का इक्वेशन क्या रहेगा, V2 बाय I2 व्हेन I1 इज इक्वल टू 0। सो V2 का वैल्यू दिया है उन्होंने 4.2 एंगल 60 डिग्री और I2 का वैल्यू दिया है उन्होंने 0.1 एंगल 0 डिग्री। सो इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये मिलेगा 42 एंगल कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री ओम। सो ये हो गया Z22। So all the 4 Z parameter or you can say open circuit parameters you have calculated. Thank you.